હિમેશ, કિશન, કીર્તિ, પારસભાઈ, પૂર્વી, Actually, Nani Joy is traveling. That's what she did. કાર્તિકભાઈના આ કાર્ય માટે જોરદાર કાર્ય થઈ જાય. આ સાઇટનું નામ છે also.in. ઓલ્સો નું નામ પાડ્યું છે. આના શબ્દની અંદર એક એક વસ્તુને મૂકવામાં આવી. A for astrologers, long life service operator. આનું આ નામ આપણે રાખ્યું છે એસ્ટ્રોલોજીકલ લોંગ લાઈફ સર્વિસ ઓપરેટર. ઓલ્સો નામની બ્રાન્ડ આજથી તમને હવેથી ફેસબુકના માધ્યમ દ્વારા બધી જ જગ્યાએ આ બ્રાન્ડ તમને જોવા મળશે. આના દ્વારા જે કોઈને પણ નંગથી માંડીને જે પણ વસ્તુ જોઈતી હશે એ બધી જ ઓનલાઈન, રિટેલ અને હોલસેલ આ બંને પ્રકારે એ લોકો પરચેસ કરી શકશે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ કાર્તિકભાઈ. બહુ સારું પ્લેટફોર્મ છે, બધા જોઈન થજો. થેન્ક યુ સો મચ. थैंक यू कार्तिक भाई एंड ऑल द बेस्ट. अब मैं एक युवा टैरो कार्ड रीडर ऋत्विक वोरा जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा. आइए. नमस्कार. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. આ મંચ ઉપર મીતા મેમને જે 24મું સંમેલન છે એમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ હું બોલવા માટે રજૂ થયો છું. એના માટે મીતા મેમને ખાસ એનું અભિવાદન માનું છું કે મને આ તક આપી એમને. આજે હું 3 નક્ષત્ર વિશે વાત કરીશ કે એ જે 3 નક્ષત્ર છે એના જે ચરણ છે અને એ નવમાંશમાં એ ક્યાં ઉદિત થાય છે. એ 3 નક્ષત્રની અંદર જો કોઈ પ્લેનેટ બેઠો હોય, કોઈ પણ પ્લેનેટ પાપ ગ્રહ હોય કે પુણ્ય ગ્રહ હોય, એટલે કે શનિ હોય કે ગુરુ હોય, તો એ સારામાં સારું રિઝલ્ટ આપવા માટે સક્ષમ છે. તો એ 3 નક્ષત્ર હું હવે નામ દેવા જઈ રહ્યો છું. પહેલું નક્ષત્ર છે પુનર્વસુ. પુનર્વસુનું 3જું ચરણ અને 4થું ચરણ. પુનર્વસુનું 3જું ચરણ અને 4થું ચરણ. 3જું ચરણ એ છે જે મિથુન લગ્નમાં અસ્ત થાય છે અને 4થું ચરણ છે એ કર્ક લગ્નમાં ઉદિત થાય છે. એટલે પુનર્વસુનું 3જું અને 4થું ચરણ. હવે એની અંદર કોઈ પ્લેનેટ બેઠો હોય તો તમને સારામાં સારું રિઝલ્ટ આપવા માટે સક્ષમ છે. પછી બીજું નક્ષત્ર આપું છું ચિત્રા. ચિત્રાનું 2જું ચરણ અને 3જું ચરણ, એટલે કે બીજું ચરણ છે એ કન્યા રાશિમાં અસ્ત થાય છે અને તુલા રાશિમાં ઉદિત થાય છે. એટલે ચિત્રા નક્ષત્રનું 2જું અને 3જું ચરણ. અને 3જું નક્ષત્ર છે ઉત્તરછાડા. ઉત્તરછાડાનું 1લું ચરણ અને 2જું ચરણ જે ધન લગ્નમાં અસ્ત થાય છે અને મકર લગ્નમાં ઉદિત થાય છે. એટલે આ જે 3 ચરણને એટલું મહત્વ એટલા માટે આપવામાં આવે છે કે એક નક્ષત્ર એવું છે કે જે એકમાં અસ્ત થાય છે ત્યારે બી વર્ગોત્તમ બને છે
અને ઉદિત થાય છે ત્યારે બી વર્ગોત્તમ બને છે. એટલા માટે એને એટલું એસ્ટ્રોલોજીની અંદર એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે કોઈ અસ્ત જ્યારે લગ્ન થાય છે ત્યારે બી વર્ગોત્તમ થતા અને ઉદિત થાય છે ત્યારે બી વર્ગોત્તમ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે જે પ્લેનેટનો પાવર છે ત્યારે આપણને એ પ્લેનેટનો પાવર એની અંદર મળી રહ્યો છે. એટલે આ 3 ચરણ જે 3 નક્ષત્રનું નામ આપ્યું એનાથી હું એ બતાવવા માંગુ છું કે ધારો કે કોઈનું લગ્ન બી એમાં ઉદિત થતું હોય તો લગ્ન બી આપોઆપ એની અંદર પાવરફુલ થઈ જતું હોય છે. તો હું આટલું જ વાત કરીને મારી વાણીને વિરામ આપી રહ્યો છું. થેન્ક યુ. બહુ सारी माहिती आपी ऋतिक भाई, थैंक यू. अब मैं डॉक्टर मोनिका करल जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी. नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका आर करल, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट. बेसिकली आई एम मेडिकल डॉक्टर एंड एस्ट्रोलॉजर टू. 30 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते हुए. मरीजों को देख देख करके और कुंडली को साथ लेकर के दूर से जब चल के आते तो बॉडी लैंग्वेज से ही ग्रह नक्षत्र बता देते हैं बीमारी 6th हाउस से. उसके अलावा मैं फेस रीडिंग, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग उससे भी प्रेडिक्शन करती हूँ. बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है. मैं आपको, क्योंकि टाइम है नहीं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि बिना किसी पंडित और ज्योतिष या डॉक्टर के पास जाए बिना आप अपने ग्रह नक्षत्र कैसे कमज़ोर चल रहे हैं या मजबूत है कैसे पता लगाएंगे, वो थोड़ा सा मैं आपको टिप्स देती हूँ. जब आप सुबह उठें और आपकी चद्दर में बहुत सलवटे हो, तकिया इधर उधर गिरा हुआ हो, तो समझ लो राहु खराब चल रहा है. किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको पता लग जाएगा. आप तुरंत चद्दर को खींच करके अच्छे से उसको टकिंग कर दें, पिलो को ढंग से कर दें. जो लोग उठते ही बिस्तर छोड़ करके चले जाते हैं, कंबल या चद्दर कहीं गिरी हुई है, वो कहीं गिरा हुआ, इसका मतलब वो रात भर जगते हैं, दिन को लेट उठते हैं और उनका राहु जो है वो खराब है. राहु हमेशा षड्यंत्रकारी होता है. आदमी को फिजिकली तो सुला देता है बट मेंटली सोने नहीं देता है. मैंने काफ़ी बुक्स लिखी है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अलावा, फूड एस्ट्रोलॉजी पे लिखी है. सारे देवी देवताओं के वाहन पशु पक्षी क्यों होते हैं उस पर मैंने लिखी है. कभी ऐसा लंबा कोई वर्कशॉप होगा, मैं उसमें अपना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगी. एक चीज़ मैंने ये देखी है कि सृष्टि में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ है. ये सृष्टि है जो कि पंच तत्व से बनी है और ये इंसान है जो पंच तत्व से बना है. तीसरा कुछ भी नहीं है. सृष्टि में 2 ही चीज़ आप देखोगे तो जुड़ी है, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, सुबह शाम, दिन रात, हर चीज़ 2 जुड़ी है, शुभ लाभ. तो महादेव जी ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो सिर्फ इंसान के लिए बनाई और इंसान के लिए प्रकृति और प्रकृति के लिए इंसान. तो ये जो पंच तत्व है वो पंच तत्व ही भगवान है. सो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि एंड न से नीर. दैट इज डेफिनेशन ऑफ भ ग व आ न. भूमि, गगन, वायु, अग्नि एंड नीर. सो दिस इज गॉड. सो जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय. जी हमारे हाथ में नहीं. जनरेट होना, पैदा होना हमको नहीं पता, हम कब कहाँ कैसे पैदा होंगे. डिस्ट्रॉय कब कहाँ कैसे मरेंगे हमारे हाथ में नहीं. हमारे हाथ में सिर्फ अ है.
एंड दैट इज 360 24/7। 24 घंटे 7 दिन हमें कर्म करना है पूरे साल, ये हमारे हाथ में है। तो जो ऑपरेट करना है वो हमारे हाथ में है, और वो ये पंच तत्व से ही होता है। तो इसमें मैं आपको साथ में वास्तु थोड़ा जोड़ते हुए बताती हूँ कि किसी भी घर का वास्तु क्या है, ये पंच तत्वों में पूरा छुपा हुआ है। जब आप पंच तत्वों में भी देखते हैं, भूमि का नाम पहले लिया है, यानी फीमेल को, यानी देवी को, गॉडेसेस को पहले लिया है। तो सभी लोग उठ करके जब बिस्तर से उठते, कभी भी डायरेक्ट धरती पे पाँव मत रखो, आगे कोई गलीचा रखो, ताकि आपकी रात भर की जो एनर्जी होती है वो नेग्लिफाई नहीं हो जाए, धरती को टच होती, आपकी ओरा बन नहीं रहे। तो सुबह उठते ही आप पहले पाँव उस कपड़े पे रखा करो। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा स्लीपर में रहते हैं, रबड़ आपकी एनर्जी को खत्म कर देता है। आप कभी चेयर पे बैठो, आपको करंट आता है। इसलिए रात को सोते वक्त और जैसे ही आप सुबह उठते हैं, रात भर आपकी एनर्जी, क्योंकि हमारी धरती जो है, जैसे रावत सर ने कहा था कि हमको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 एक्सेस पे ही हमारी धरती चल रही है। तो दक्षिण में जब हम सिराना रखते हैं, सर रखते हैं, और नॉर्थ में हम पाँव रखते हैं, तो भार की जगह भार रखना है और हल्के की जगह हल्का रखना है। नॉर्थ हल्का है, ऊपर कच्ची बर्फ है, महादेव जी बैठे हैं, हिमालय। और पानी का नेचर क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आना। अग्नि का नेचर क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। आप पंच तत्वों को पहचानोगे ना, सबका एक नेचर और एक ज्योमेट्रिकल उसका वो बना हुआ सिंबल। हमारी बॉडी पूरी ज्योमेट्रिकल है। आप आग को देखोगे तो ट्राइंगल है। हमारी सारी एनर्जी जो है ट्राइंगल में चलती है। जब हम आलती पालती बैठ के भोजन लेते हैं, तब भी हम ट्राइंगल में बैठते हैं। दैट मीन्स हमारी जो जठराग्नि, हमारे जो 7 चक्रास है, क्राउन चक्र से मूलाधार चक्र, उसमें जो ये अग्नि चक्र है, ये अग्नि वाला क्या है, जठराग्नि। तो आप अग्नि का जो ट्राइंगल देखोगे, यानी दूर से आप आग जलती हुई देखोगे तो नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर जाके फैलेगी, आपको आग ट्राइंगल दिखती है। इसका मीन्स ये है कि हमारी जठराग्नि सुबह पाचन क्रिया, हमारा जो कि लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि जो राइट से लेकर लेफ्ट तक इतना बड़ा आ रहा है, ये मेन है हमारा लीवर। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे मेजर चीज ही हमारा लीवर है, यकृत। और ये लीवर कब काम करता है, कौन कैसे चीज आप देखना आगे से आगे कनेक्टेड है पंच तत्वों पे। जैसे इतना बड़ा घर है, इसको सेफ कौन करता है, छोटा सा दरवाजा। हमारे इतना बड़े घर को एक छोटा दरवाजा सेफ करता है। उस छोटे से दरवाजे को कौन सेफ करता है, एक छोटा ताला। और छोटे ताले को सेफ कौन करती है, तीसरी चाबी। यानी जो चाबी है ना, जब आप उसको खोलते हो तो क्लॉकवाइज खुलती है, लॉक एंटी क्लॉक होती है। आप समझो, हम कुंडली भी पढ़ते हैं, एंटी क्लॉक पढ़ते हैं, यानी कि प्रारब्ध के कर्मास कुंडली क्लॉकवाइज नहीं चलती। बाकी हम वास्तु में हर चीज क्लॉकवाइज देखते हैं, चाहे स्टेयरकेस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुंडली एंटी क्लॉक पढ़ी जाती है। जब ताला खुलता है, एंटी क्लॉक खुलता है। नजर भी क्लॉकवाइज ही उतारते हैं। हाँ, सब चीज क्लॉकवाइज है, लेकिन प्रारब्ध क्योंकि पास्ट लाइफ होती है। तो छोटी सी कुंजी जो होती है वो इतने बड़े महल को सेफ रखती है। तो ये हमारा शरीर, ये भी बहुत बड़ा एक कैसल है, और इस कैसल को लॉक कौन करती है, छोटी सी चाबी। वो चाबी कौन है, पाइनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, जो कि रस छोड़ती है, और वो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही खुलती है। 2 घंटे में 2 बूंद रस छोड़ती है, जो कि ब्रेन के सेंटर में होती है। उसका खुलने का समय ही ब्रह्म मुहूर्त है, बाकी खुलती नहीं है। मतलब महादेव जी ने इतनी अद्भुत संरचना करी हमारे शरीर की कि जब आपको लॉक खोलना है तो आपको सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। 4 से 5, 5 से 6। आप 3 बजे उठते हैं तो बहुत बढ़िया। मैं कभी 3 घंटे से ज्यादा सोई नहीं और मुझे कभी थकान महसूस नहीं हुई। 3:01 कभी मेरा हुआ नहीं। आज मैं 54 की हो गई हूँ, मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ है कि मेरे को थकान है। मैं ऐसे कैसे दौड़ती हूँ, मेरे को आप 8-8 घंटे बुला सकते हो, मेरे को कभी थकान नहीं होती। ये सब क्या है कि एनर्जी, हम सब आपस में एनर्जी है। और ये जो 2 बूंद निकलती है ना, ये आपके दिन भर आपको एनर्जी को, वाइटल फोर्स को आपको सपोर्ट करती है, और ये वाइटल फोर्स ही आपको दिन भर एनर्जी देता है।
और ये वाइटल फोर्स ब्रह्म मुहूर्त में ही काम करता है, बाकी नहीं करता है। अभी बीमारियां इसलिए इतनी, रात भर सब मोबाइल पे लगे रहते हैं। मैं आपको ना फेसबुक पे देखूंगी, आई बिलीव इन फेस टू फेस, मुझे डायरेक्ट एनर्जी चाहिए। ये जो आप गैजेट्स पे रहते हो, ये आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपका ओरा, आपका फेस का सब आपकी एनर्जी जो है ना, ये इलेक्ट्रिक चीजें आपको जितनी जरूरत है। आप जैसे प्रण लेते हैं कि आज हमारा उपवास है, आज से एक दिन का प्रण कि हम एक दिन मोबाइल का उपवास रख रहे हैं, संडे को मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, मतलब रहेगा। अब 6 दिन काम करो, एक दिन बंद रख दो, आप देखो अपना आपको एनर्जी को इतना अच्छा फील करोगे। हमने ऐसे कई पेशेंट के ऊपर रिसर्च किया है कि हमने उनको बाहर घूमने भेजा और हमने कहा आप मोबाइल अपने घर पर ही रख के जाएंगे, 1 हफ्ता घूम के आओ, और फिर हमने उनका बीपी और चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल आया और कुछ नहीं था, उन्होंने मोबाइल नहीं देखा। इतनी ज्यादा एनर्जी इससे वेस्ट होती है। मैं तो ये कह रही हूँ, जो रात को 2-2, 3-3 बजे लगे हुए हैं, ऐसा आपकी कौन सी फैक्ट्रियां बंद हो गई, आप कौन से करोड़पति हो गए, मेरे को बता दो। आज आप सबका भाग्य देखते हो, किसके पास मर्सिडीज कार है, हाथ खड़ी करके बता दो। एक क्वेश्चन है मेरा, हम यहाँ आकर कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं ना कि हम भाग्य बदल सकते हैं, ये होता, हम पढ़ना जान, तो सबसे पहले हम अपना भाग्य देखें कि हमारे पास क्या है। क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, मैं वापस वही कह रही हूँ। मैं 18 साल आर्मी में डॉक्टर रही हूँ, अभी भी आर्मी बीएसएफ दोनों मेरे पास है, तो मैं तो सेना से भी जुड़ी हुई हूँ और सिविल से भी जुड़ी हुई हूँ। तो कई तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि जब आप लोगों का प्रेडिक्शन करते हो तो आप पहले अपना तो बदल के बताओ। सिंपल है, सही चीज है, बिल्कुल फैक्ट है। तो मैंने सारी चीजें करी और मैंने बदली और ये सब चीजें मेरे पास आ गई। तो ये कैसे आई वो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो चाहे, आप चाहो आपके घर में ऑडी चाहिए, ऑडी आ सकती है। मैं आपको ऐसा टिप्स दे रही हूँ क्योंकि मैंने सब किया और मेरे घर सब आया। आज कोई कमी नहीं है, महादेव जी का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ खड़ी होकर रोज महादेव जी को धन्यवाद देती हूँ। आज आपके सामने बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इतना दिया, 1 मांगा 10 दिया, लेकिन वो मैंने उस प्रोसीजर से चली। आज 2.5 लाख की घड़ी है ये, वो कोई मायने नहीं रखती है, आप सब पहन सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी स्पेशल है, भगवान ने सबके अंदर एक एक बहुत स्पेशल गुण डाल के भेजा, हम पहचानते ही नहीं। हम एक दूसरों की एनर्जी काटने में रहते हैं, उससे हम हमारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। आप हमेशा प्लीजिंग पर्सनालिटी रहो। आप जैसे हंसोगे ना, आपके कितने चेहरे के मांसपेशियां आप सोच नहीं सकते हो, आपके ओरा को बढ़ाती है। आप दूर से अट्रैक्ट हो जाओगे, आपका ओरा इतना बढ़ जाएगा। मैंने मेरी लाइफ में कोई क्रीम पाउडर कभी नहीं लगाया, मैं सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ। आप करके देखो, गर्मास आ जाएगी आप पे एनर्जी की। तो भर से भूमि, सुबह उठते धरती को प्रणाम करो, डायरेक्ट अपनी एनर्जी धरती से टच मत करो, सब खत्म हो जाएगी। रात भर की जो चुंबकीय शक्ति चलती है वो खत्म हो जाती है। सर हमेशा दक्षिण में रखो, पैर हमेशा नॉर्थ में रखो। जब दक्षिण में सर रखते हो, पीछे खिड़की खुली नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब पैसे वाले कैसे बनो, मैं प्रैक्टिकल कई लोगों पे आजमा हुआ है, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज और आपको बता रही हूँ, आप करके देखना। बेड को 3 साइड से खुला रखना, कोने में मत चिपका देना, सबसे बड़ी चीज ये। साउथ वेस्ट में ग्रह स्वामी का सिराना होना चाहिए, तो उसका घर में हमेशा दबदबा रहेगा। ग्रह स्वामी कैसा, जिसकी घर की रजिस्ट्री उसके नाम की है, घर जिसके नाम का है, जिसकी रजिस्ट्री उसके नाम की, उसको साउथ वेस्ट में, दक्षिण में सिर और नॉर्थ में पांव रखना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उगता सूरज ईस्ट में अपना सर रखना चाहिए और वेस्ट में पांव रखना चाहिए। जो लड़कियां पढ़ ली लिख ली, शादी नहीं हो रही, अब उनको घर से निकालना है, वो नॉर्थ ईस्ट, ईशान कौन, ईश्वर के कौन से, नॉर्थ ईस्ट से सीधी नॉर्थ वेस्ट में आ जाओ, अपना सिराना ले लो, शादी हो जाएगी तुरंत। सब प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ, बिकॉज वायु क्या, हवा का काम क्या, झोंका बहा के ले जाना। तो आप जब उठते हैं धरती को प्रणाम करो, कपड़ा आगे रखो, आप गलीचा रखो, कुछ भी दरी रखो, पहले उस पर बैठो 2 मिनट तक। हम क्यों कहते हैं कि हाथ खोल के पहले देखो, यहाँ लक्ष्मी बैठी है, यहाँ ये है या वो है। सिर्फ शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने जोड़ दिए हैं कि हर कोई आदमी भगवान के डर से काम करेगा। अल्टीमेटली हमारे शरीर के लिए प्रकृति और प्रकृति के लिए शरीर है।
हमारा जो रेटिना है उसके ऊपर लेंस फोकस करना होता है। जैसे हम फोटो खींचते हैं, ब्लर आती है, हम लेंस फोकस करते हैं डिस्टेंस से, फिर क्लिक करते हैं। हमारा रेटिना भी सुबह फोकस होता है, दूर से देखते हैं हमारी आंखों पे जोर आता है, इसलिए कहते हैं पहले हाथ में देखो, ऊपर से नीचे 3 बार आए, लक्ष्मी आई है, वो फिर प्रणाम करो। वो हमारा लेंस सेट होता है एक्चुअल में, उसका हरा कलर है। इसलिए जिसकी आंखें खराब होती तो कहते हैं नंगे पांव हरी घास पे पैदल चलो, रेटिना काम करता है। डॉक्टर को थिएटर में इसीलिए हरा कलर ऑपरेशन थिएटर में होता है। आप हमेशा देखना आंखों पे हर चीज जोर नहीं पड़ती हरे कलर से। कई मुसलमान भाइयों के देखना आंखों के चश्मे कम दिखेंगे, हरे कलर में ज्यादा रहते हैं। अभी लाल पीले ज्यादा जिस तरह से हैं तो आंखों पे जोर पड़ता है। तो उठते ही पहले धरती को प्रणाम करो, ब से भूमि, भगवान का भ से भूमि, फिर मदर के दोनों टो टच कर रहे हैं झुक करके। हमारे हाथ एंटीना का काम करते हैं और पांव हमारे एनर्जी निकालने का काम करती है। हमको किसी की भी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो आप उसके पांव को छुओगे तो उसकी सारी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। और हाथ हमारे एंटीना का काम करते हैं। ये क्यों इसके अंदर 5 तत्व दिए हैं कि ये उंगली उसकी, ये उसकी, ये उसकी, ये इसकी, ये वाटर एलिमेंट की। टॉयलेट जाना होता है, यही क्यों बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों बोलते हैं। सब चीज समझो आप, रीजन क्या है। जो लेडीज है उसके लेफ्ट में क्यों मौली बांधते, राइट में क्यों नहीं बांधते, आदमी के राइट में क्यों बांधते हैं। आप हमारे डॉक्टर्स का सिंबल देखोगे तो अभी सांप बने हुए 2, पहले प्लस था, अभी 2 सांप है। क्या है, सिंपल है। हमारे शास्त्रों में पहले लिखा हुआ था। अमेरिका तो बेवकूफ बनाता है कि अमेरिका ने बोला है आज से डॉक्टर्स का ये सिंबल रहेगा इसलिए रहेगा। कुछ नहीं, हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने हमको पहले ही बता दिया था। राइट साइड में सबके सूर्य नाड़ी चलती है, लेफ्ट में चंद्र नाड़ी चलती है। प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ईडा एंड पिंगला, और बीच में सुषुम्ना चैनल चलता है। तो जब आप सिंबल देखोगे तो ऊपर ब्रेन है उसमें, और तीखा जो पूरी लंबी लाइन दी है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, और 2 जो चैनल दिखाए 7 चक्रास के, इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, ईडा और पिंगला, ये डॉक्टर्स का सिंबल है 7 चक्रास का। जहाँ ये दोनों नाड़ी घर्षण करती है वहाँ एनर्जी पैदा होती है, वो चक्र है। अब हर चीज को समझोगे ना, बहुत सिंपल है, और उसके हिसाब से आप चलोगे ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल घर के मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। तो सुबह उठते मदर के दोनों टो टच करने आपको, वो एनर्जी बाहर निकलती है। अभी फोन पे कह देते हैं चरण स्पर्श, पगे लागना। अब कई लोग लिख देते हैं जय श्री कृष्ण, JSK। व्हाट इज JSK? मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ ऐसे इंसान को। अब भगवान को शॉर्ट में कह रहे हो JSK, आप समझ रहे हो? तो एनर्जी आपकी कैसे काम करेगी? तो सबसे पहले माता भूमि टच किया, फिर मदर के दोनों टो टच किए। ऐसे घुटने टच नहीं करना, आप शनि को टच कर रहे हो। जो झुक के ऐसे घुटने टच करता है ना, अपना शनि खराब कर रहा है। आदमी का घुटने से पैर के नीचे का भाग शनि कहलाता है, औरत का एल्बो से हाथ तक का भाग शुक्र कहलाता है। जब औरत, वास्तु का बहुत अच्छा है, नोट कर लो बोली, जब औरत रोज रात को पूजा पाठ के बाद 7 साढ़े 7 के बाद हस्बैंड जब सोता है उसके पीछे बैठ करके घुटने से नीचे के पांव 5 मिनट औरत दबाएगी, उसके घर में कभी भी शनि प्रवेश नहीं करता, शुक्र प्रबल होगा। क्योंकि औरत का हाथ यहाँ से शुक्र शनि को दबाता है। हाँ, तो आप विष्णु भगवान को देखेंगे, विष्णु भगवान पौधे में और लक्ष्मी पांव दबाती, इसके पीछे क्या है? सांकेतिक भाषा है। अभी उल्टा आदमी औरतों के पांव दबा रहे हैं तो शनि घर में घुसा हुआ है। मैं फैक्ट है, मैं बता रही हूँ। सब दुखी क्यों है? बाल सबके सफेद हो रहे हैं, लाके हम शनि बिठाते पोतते काला। आप सब दशाएं खुद खराब कर रहे हो। भगवान अपना पैदा होते हैं, जब शनि की दशा होती है तब कहते हैं कि ये बाल हटाओ, बच्चा पैदा होता है। उसमें भी 1 3 साथ में हटाए जाते हैं, दूसरे साल में चौथे साल में नहीं होता है। 6 8 4 बेकार मानते ना। बच्चा 1 साल का होना चाहिए, जब जड़ूला 3 का होता है तो जड़ू ऑड नंबर में होता है ना। शनि की पनौती पहले हटाते हैं, उसके बाद जब यंग होते तो शनि उच्च का होना चाहिए, न्याय का देवता है। आपको गाड़ी घोड़े लो लकड़ का देवता है, मजबूत होना चाहिए। जैसे जैसे एज होती शनि की दशा उतरती, बाल वाइट आते, चंद्र की दशा आती अच्छी अच्छी, आप कूल रहते हो, आप शांत रहते हो।
यहाँ रखे हुए ना आदमी का ईगो हर्ट हो रहा। अब शनि को तो आपने सर पे बिठा दिया, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य शनि बाप बेटे बन ही नहीं सकते, आप कैसे शांत रह सकते हो? मैंने तो आज तक डाई नहीं किया, वाइट आ रहे हैं तो आ रहे हैं, इसमें क्या हो गया? आप एक्सेप्ट करो ना। आपको तो सुबह सुबह एक बार ही कांच में देखना, दिन भर लोग देखेंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है बालों से? क्यों करते हो? शनि को पनौती दे रहे हो। एक बार था ना, लक्ष्मी और शनि में हो गया लड़ाई, कौन अच्छा कौन अच्छा। महादेव जी के पास गए कि दोनों आओ जाओ, मैं बताता हूँ कौन अच्छा है। महादेव जी ने कह दिया शनि जाता हुआ अच्छा लग रहा है, लक्ष्मी आती हुई अच्छी लग रही है। तो शनि गया हुआ, आप क्यों उठा के उसको पोत रहे हो? आज से बंद कर दो। आप देखो आपके घर में लाइफ कितना चेंज हो जाएगी। तो लास्ट 2 मिनट लूंगी टाइम का बहुत मान अब रखिए, सर ज्ञान क्योंकि की सबको देना है सबको टाइम। देखो सर, हम क्योंकि राजस्थान 10 से आते हैं, मिनट आप सबको सब देंगे। लोकल हो। नहीं सही बात है, तो बाद में 2 टाइम मिनट। होगा तो आपको देंगे। हाँ 2 मिनट दे दे, अभी भगवान वाली थोड़ा- डेफिनेशन पूरी कर दो। हाँ थोड़ा ज्ञान देने ही आए सर। तो भ से भूमि, माता के पांव, ग से गगन यानी पिता। माता नीचे है, पिता का हाथ ऊंचा है। माता को पहले लिया है भूमि को, बट सेकंड गगन, पिता हाथ ऊपर है। उठते पिता के आप चरण स्पर्श करो, चाहे आप कितने भी लड़े हुए हो, गुस्सा है, विचार नहीं मिल रहे, फिर भी करो। एक दिन गुस्सा, 2 दिन, तीसरे दिन अपना ब्लेसिंग निकलती है, बेटा पाँव छू दो, बांट जोएंगे बेटा अगर पाँव छुए, उल्टा हो जाएगा देखना। और बाहर आके सुबह सुबह आसमान देखो, बिकॉज सूर्य चंद्र, सूर्य पूरे सृष्टि का राजा है, ग्रहों का मंगल सेनापति है। जब आप सुबह सुबह देखते हो तो चांद और सूरज जो हमको आंखों से दिखते हैं, ये ग्रह इतने पावरफुल है जो हमको दिखते हैं, डायरेक्ट एनर्जी दे रहे हैं। बाकी तो सारी कॉस्मिक एनर्जी से शोभा हो रही है। तो आप सुबह उठते ही आसमान देखो, स्काई इज अ लिमिट, अनंत। आपका सोच अनलिमिटेड होगी, इनफिनाइट होगी। आसमान की तरह आप बहुत दूर तक अपनी सोच को रखोगे। भूमि, गगन, देन थर्ड इज वायु। 5 में वायु को सेंटर में रखा है, 2 इधर 2 इधर, बैलेंसिंग पॉइंट। हवा 10 दिशाओं से कहीं भी आ सकती है। उठते ही 3-4 बजे कूलर एसी सब बंद कर दो, पूरे घर के दरवाजे खोलो, प्राण वायु आने दो। 3 बजे के बाद सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सूरज ढलने के बाद सब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। बीमारियां कैसे घुसती, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैसे पैदा हुई वो बता रही हूँ। आप इस चीजों का फॉलो नहीं करते हो जब ये चीजें पैदा होती हैं। आप सुबह 3-4 बजे कूलर एसी बंद कर दो, प्योर ऑक्सीजन घर में फ्लो होने दो। वायु घर में होती बहन बेटियां। आजकल बहन बेटियों को जितना दान पुण्य करना चाहिए भाई लोग नहीं करते हैं, इसलिए सबके ग्रह खराब चल रहे हैं। बहनों को देना सीखो, दिल बड़ा रखो। वायु है, हवा का झोंका है, आज इस घर में कल किसी घर में, बहनों को दो, कभी कमी नहीं आएगी आपके। तो भूमि, गगन, वायु, तीसरी अग्नि। हमेशा नहा धो करके रसोई में आप जाइए, स्नान करके। नींद में से उठे, मैक्स पहने हुए बेड टी लेने आप जा रहे हो, आपका बेड ही होना है सब। कभी भी बिना नहाए धोए किचन में मत जाओ। अग्नि है वो शुद्ध है, आत्मा का कारक है अग्नि। अग्नि सूर्य में कौन है? सूर्य देवता है सृष्टि पे। तो जब भी आप खाना भोजन बनाते हैं, भोजन देवता को पहले नमस्कार करो, हर चीज उनको अर्पित करो। और सृष्टि में सूर्य भगवान को हाथ जोड़ो, गायत्री मंत्र 3 बार बोलते हुए। कोई जल नहीं चढ़ाएगा, ये कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगी। धरती पे खड़े रह के अर्घ नहीं दिया जाता है, जो देंगे उसके घर में पैसा खत्म हो जाएगा। आग को कौन बुझाता है? पानी। आप खुद अपना वैश्य खत्म कर रहे हो, व्यापार। अग्नि के आगे पानी मत डालो। अग्नि को अर्घ देने का एक नियम है, कभी टाइम मिलेगा वो बताऊंगी। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि। अग्नि घर में कौन है? पिता, पुत्र। बेटे को ये मत बोलो मैं तेरा बाप हूं, तुम्हें वो सिखाएगा क्या? बेटे का भी मान सम्मान करो, आगे वंश वृद्धि बेटा करेगा, अग्नि है वो, उसकी भी राय लो, उसको भी प्रिविलेज दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भूमि, गगन, वायु, अग्नि एंड नीर। नीर इज अ पानी। लोग रात को पानी भर के रख देते हैं, सुबह वापस गन्ना लगा के छान के इधर उधर करके वापस पानी छानो, धो करके भरो, रात का ठंडा पानी। और सृष्टि पे नीर कौन है? जो भी आत्मा है, जिंदा है, जो शरीर को छोड़ के चली हुई है, उन आत्माओं को सिर्फ जल दिया जाता है। सुबह उठकर रोज पीपल में 1 लोटा आप जल चढ़ाएं। आपके घर में आपके जितने भी पितृ हैं, आत्मा है, उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आपके पितृ दोष नहीं होगा। जिसका इष्ट प्रबल है उसको कोई कुछ नहीं रोक सकता, जिसका इष्ट प्रबल नहीं उसकी बिस मिलती है। तो आप ये
पंच तत्व के हिसाब से आप चलेंगे, आप प्रकृति को जो दोगे प्रकृति आपको देगी। धन्यवाद। थैंक यू मोनिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दिया। टाइम नहीं है, लेकिन आपसे ज़्यादा सुनते हैं, दूसरी बार आपको मौका देंगे। कभी मौका मिला तो मैं बहुत अच्छे आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी और आप आजमा के देखना नहीं, अगर सामने। टाइम मिलेगा तो आपका वापस- जरूर लेंगे, टाइम होगा तो आज ही लेंगे। और मैं मेरे गुरुजी परम प्रिय मेरे श्रद्धेय निरंजन जी भट्ट को नमन करती हूँ। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू मैडम। It is a big loss. अब मैं डॉक्टर रिया गुप्ता जी को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा, कैरोट कार्डिनल एंड एस्ट्रोलॉजर। अब देखो, जो भी यहाँ वक्ता आता है उसको एक समय की मर्यादा रखनी पड़ेगी। 10 मिनट के ऊपर कोई भी लेक्चर आगे लेना नहीं है। 10 मिनट के अंदर 5 मिनट में होता है, लेकिन अच्छा तो 5 मिनट ले दो, लेकिन 10 से ऊपर किसी का नहीं होना चाहिए। मैं उनको रोक सकता हूँ, मैं रोकूंगा, कोई गलत मत लगाए। रिया बहन, क्या Enjoying? ગરબા માણસ વધારે on the spot हेलो, आप प्लीज पीछे जो बोल रहे हैं प्लीज चुप कर जाएंगे। एक मिनट मुझे दूसरा Hello. I request all of you to please take your seats. I request each and everybody to please take your seats. पीछे सभी लोग वापस अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज। मुझे वहां शोर नहीं चाहिए। जलेश भाई, प्लीज टेक योर सीट। विमल भाई, कार्तिक भाई, मयंक, दिनेश चौधरी, ये बीजेपी के हुआ है अध्यक्ष है, महसाना दिनेश चौधरी बीजेपी अध्यक्ष है। Thank you all. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। आई एम डॉक्टर रिया गुप्ता। आई एम ए PhD होल्डर इन एस्ट्रोलॉजी एंड आई बीन पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ऑल्सो। MBA किया हुआ है। आई बीन टू कॉर्पोरेट रिलेशनशिप हेड फॉर एंटायर दिल्ली NCR MNC में काम किया है। बट आई बिलोंग टू ए डॉक्टर फैमिली। मेरे फादर डॉक्टर थे। ही वॉज ट्यूबरक्लोसिस एंड हार्ट स्पेशलिस्ट। तो हमेशा से वो मेरे आइडल रहे थे कि दैट मैं भी मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, बट कुछ करके मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो मैंने उन्हें हमेशा देखा कि लाइक लोगों को हील करना, बट जब मुझे चांस मिला तो आई थॉट कि व्हाई नॉट। और बीइंग इनटू MNC इंडस्ट्री, आप सबको पता होगा इट्स वेरी रेयर टू एक्सेप्ट द अकल्ट साइंस और अकल्ट फील्ड। बट हमेशा से बचपन से ये क्वेश्चन मन में आता था कि दैट व्हाई आई एम हियर, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन आता होगा व्हेन यू आर स्टडिंग, या आप 10th स्टैंडर्ड में हो गए या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बट ये मेरे मन में हमेशा से क्वेश्चन था। सो आई थॉट सो दैट्स व्हाई नेचर गाइडेड मी टू बी हियर ऑकल्ट साइंस में।
बट सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं थैंक्स ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ नीरल फाउंडेशन का, नीता जानी मैम का और जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल गेस्ट और आप सब लोगों का, दैट आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, आप मुझे सुन रहे हैं ताकि मैं अपना यहाँ पे एक मैसेज कन्वे कर पाऊँ। रेकी प्रैक्टिस में काफ़ी सालों से कर रही हूँ, सिंस 2004 जब मैं स्टडीज़ कर रही थी तब मैं रेकी में आई थी। एस्ट्रोलॉजी में इट्स नॉट बीन लॉन्ग, नॉट ए डेकेड, बट थोड़ा ही टाइम हुआ है मुझे एस्ट्रोलॉजी में एक्टिवली काम करते हुए। बट यहाँ पे आज मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करने आई हूँ अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन ऑकल्ट साइंस, इन ऑकल्ट वर्ल्ड, इन ऑकल्ट फील्ड। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है द वे वी आर वर्किंग। ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। कस्टमर जब सेटिस्फाइड नहीं होता तो क्या होता है, वो आगे दूसरों को नहीं बताता है, क्योंकि जब वो दूसरों को बताएगा तभी हमारे पास ज़्यादा लोग आएंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन की वजह से हमारी कम्युनिटी, या लोग बोल देते हैं ना, जैसे अभी यहाँ पे मैम आई थी, अभी उन्होंने बताया कि आप अपना क्यों नहीं भाग्य चेंज कर लेते, बट हमें पता है वी आर डेस्टाइन्ड टू सर्टेन थिंग, हम अपना भाग्य नहीं चेंज कर सकते, बट वी कैन गाइड अदर्स। तो डिससेटिस्फेक्शन है, कुछ हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, या मैंने दूसरों को देखा है कि वो क्या गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर आगे अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या आगे अपने सर्कल में नहीं बताते। लोग छुप छुप के आते हैं कि मुझे बताना नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई कल बोल देगा अच्छा यार तो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, वो तो बाकी आपको पता है स्टेटमेंट, यू कैन कंप्लीट द स्टेटमेंट, राइट। माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जो भी है नेगेटिव बोल दो या नेगेटिव परसेप्शन बोल दो, कुछ ना कुछ वो एक प्री कंसीव नोशन लेके चल रहे हैं लोग, इसलिए लोग ओपनली आके नहीं बताते दैट वी कंसल्टेड टू एस्ट्रोलॉजर। चाहे ऑकल्ट साइंस का कोई भी फील्ड हो, टैरो भी क्यों ना हो, चाहे रेकी भी क्यों ना हो, पीपल ऑलवेज लुक फॉर कि हमें प्रूफ दो आपकी लाइफ में क्या हुआ। तो मेरा पर्पस ये है आज हाईलाइट करने का कि कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन क्यों हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, क्या हम लोग गलत चीज़ कर रहे हैं, या जो मैंने देखा है जो गलत चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको अपने टीचर की बात शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। उनकी लाइफ में 25 साल पहले, जैसे यहाँ पे नीता मैम एक हमें अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उनके साथ एक पिछला सेशन किया था जहाँ पे हम लोग फ्री कंसल्टेंसी वी आर ऑफरिंग टू पीपल। तो जो मेरे टीचर थे उनको भी ऐसे ही 25 साल पहले जब वो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे या जो भी उनका एक्सपीरियंस था, ऐसे ही किसी सेमिनार या किसी फंक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनके साथ एक और भी आए सज्जन जो आई थिंक सो संस्कृत के शास्त्र के टीचर थे, बट ही वॉज 70 ईयर्स ओल्ड। तो वो दोनों एक काउंटर पे थे, सामने से एक फादर और सन आए, अब लड़का आया अपने पिताजी की कुंडली लेकर कि सर मेरे पिताजी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, आप प्लीज़ गाइड करें। तो जो मेरे टीचर थे, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि साथ में एक 70 वर्षीय एक इंसान बैठे हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर है। तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि अपने पिताजी को गुरु का नाम पहना दीजिए। अब आप ये बताएं कि आप गुरु का नाम हर लग्न की कुंडली में हम दे सकते हैं? अगर वो वृषभ लग्न हो तो क्या होगा? तो वो वैसा ही केस था। तो जो सामने वाला लड़का था वो खुद एस्ट्रोलॉजर था, बट कई बार होता है ना, हम अपनों के लिए थोड़े से बायस हो जाते हैं, वी कैन नॉट सी व्हाट वी नीड टू गाइड देम। तो उसी टाइम वो भड़क गए कि आप एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, बट यही प्रैक्टिस हो रही है कि हर जगह बोल देते गुरु तो अच्छा ही है, चाहे वो बाधक है, मारक है या दूस्थान का स्वामी है। इसी तरह से एक मेरे पास भी ऐसी केस आया जिनको, जो मेरे ही क्लाइंट थे, कुंभ लग्न की कुंडली में स्वग्रही चंद्र है, चंद्र का उनको नंग पहनाया गया। आप सोचिए क्या लाइफ में हुआ होगा। ऐसे और भी प्रैक्टिस में आपको बताती हूँ, और भी केस है। एनर्जी चेक करके, ये तो मैंने अभी आपको कुंडली देख के बताया कि उन्होंने कुंडली देख के सजेशन दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बर्थ टाइम ही नहीं है, या पुराने टाइम पे बहुत एज्ड है, पेरेंट्स को कुंडली के बारे में इतना नॉलेज नहीं है,
कुंडली नहीं थी, बर्थ टाइम नहीं था, किसी ने उनकी एनर्जी चेक करके बोल दिया कि पीजन रूबी, कोई रूबी का नाम होगा, पीजन रूबी वो पहन लीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। अब एनर्जी देख के आप बता रहे हो, अब वही सवाल आपके मतलब मेरे मन में सेम आया, क्या सूर्य वाकई में अच्छा, इनको पहनना चाहिए? वही मारक हुआ कुंडली में, 6, 8, 12 का स्वामी हो तो क्या होगा? तो ये ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं उसकी वजह से लोगों का तो गलत हो रहा है, इसी वजह से विश्वास खत्म हो गया। अब मैं आगे और बात करूं एनर्जी की। आजकल मशीनें चल रही हैं ना बंदूक वाली, किसी को पता है? जिसको हम बोलते हैं स्कैनर। काफी जगह मैंने देखा है स्कैनर कैसे यूज करते हैं। अक्सर देखा गया लोग खुद ही हाथ से स्लोप दे देते हैं या खुद ही स्कैनर को चेक करके बोल देते हैं आपकी कुंडली में कोई बात नहीं, हम लोग स्कैनर चेक करके आपको बता देंगे कौन सा नंग कौन सा जेमस्टोन पहनना है। और थोड़े दिनों के बाद उसी इंसान की कुंडली उसके हाथ में आ जाती है और बोलता है जी साहब बताना ये सही मैंने नंग पहने जो आपने स्कैनर से चेक करके बताए थे। तो वहां भी क्या होगा? इंसान का कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रही हूँ, कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। आप एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, डंके की चोट पे कह रहे हो कि मैं एनर्जी डिटेक्ट कर रहा हूँ, बड़ा जब आप लोग कुछ खुद ही स्लोप दे रहे हैं, कहाँ से आप एनर्जी चेक कर पा रहे हो? पेंडुलम भी मैंने देखा है, पेंडुलम भी इतनी तेज 1 फीट की घेरे में बहुत तेज घूमता है। साइंस के सारे रूल्स वहां पे धज्जियां उड़ जाती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एवरीथिंग। जब पेंडुलम डाउस करते हैं तो वो इतनी तेज घूम ही नहीं सकते हैं, बहुत माइनर फ्रिक्शन होगा जो आपको एक माइक्रोस्कोपिक आईज या लेंस के साथ देखना पड़ेगा। बट दीज आर द मिस्टेक्स जो मैंने लोगों को करते हुए देखा, जिसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। अगर मैं इसमें आगे और जाऊं, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन की अगर बात हो रही है, सो प्लीज रिलेट विद मी, आप सुनिए समझिए, ऐसा हो रहा है क्या आपके आसपास? कुंडली लग्न आती है, कुंडली का डिग्री है 0 to 1 डिग्री या 29 डिग्री से आजू बाजू है, तो चांसेस आर वेरी हाई लग्न चेंज हो सकता है। क्योंकि लोगों के बर्थ टाइम क्या होते हैं मैडम? 9 AM 8:15, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 AM और 8:15 आप समझ सकते हो, इट्स वेरी लीस्ट, टाइम एक्यूरेट नहीं होता। वो इतनी कोशिश भी नहीं करते कि कस्टमर से हम वापस पूछ लें कि प्लीज आप अपनी मदर से जाके पूछिए इज इट द एक्यूरेट टाइम और नॉट। जब टाइम एक्यूरेट नहीं होगा, आपने जो भी आपने उनको गाइडेंस दी है उसका उन्हें फल नहीं मिलेगा, और वो बाद में क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही फायदेमंद नहीं है। डिससेटिस्फेक्शन, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग पूछते ही नहीं है। राहु केतु के दोनों साइड पे प्लैनेट्स हैं, काल सर्प नहीं है, काल सर्प की पूजा रेकमेंड कर दी है। जो आपको आंखों सामने दिखता है काल सर्प नहीं है, ऐसे भी केसेस देखे मैंने, पूजा करवा दी है और फिर बोलते हैं कि अगेन नाम खराब हो रहा है हमारा। कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। 7वां भाव अच्छा है फिर भी कुंभ विवाह का सजेशन दे दिया जाता है। तो आप ये देखिए, तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कस्टमर क्या बोल देता है, उनकी ओवर एग्जैजरेट ड्रीम्स है, एक्सपेक्टेशन है कि मैं पैसा खर्चने के लिए रेडी हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लड़के आ जाते हैं मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, किसी को हीरोइन बनना है, किसी को हॉलीवुड में जाना है, बॉलीवुड में जाना है, क्रिकेटर बनना है। जब वो पैसा खर्च, वो बोल देते हैं मैं पैसा खर्चने के लिए तैयार हूँ, मुझे करवा के ये दो, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी ऑनेस्ट विद देम कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जब भी आप उपाय दें तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट्स कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ताकि वो अपना पैसा ना खराब करे, क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ऑनेस्ट। इफ वी आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन देन हाउ वी कैन अज्यूम दैट कि वी आर गोइंग टू, हम अपने साथ सबको लेके चले। जैसे यहाँ पे ये हो रहा है, इट्स 24th ग्लोबल समिट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, हम कैसे ग्रो करेंगे जब हम ही ऑनेस्ट नहीं है अपने प्रोफेशन के साथ? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, दैट्स इट, आई एम शेयरिंग विद यू
क्योंकि हमें लोगों को रास्ता दिखाना है कि व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। वी कैनॉट चेंज एनीवन डेस्टिनी, आई कैनॉट चेंज माय डेस्टिनी, यू कैनॉट चेंज योर डेस्टिनी, बट वी कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर। इसलिए बोलते हैं ना, ड्राइव कर रहे हो सीट बेल्ट लगाओ या हेलमेट पहनो। एक्सीडेंट तो होने ही है बट फेटल नहीं होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही क्या है? इट इज अ सीट बेल्ट या हेलमेट। एक्सीडेंट तो होंगे लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट वो फेटल नहीं होंगे, कंट्रोल कर सकते हो। सो दैट इज माई मैसेज फॉर यू टुडे अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। थैंक यू रिया जी, बहुत अच्छी जानकारी दिया। बहन ने बोला स्टोन के बारे में बात किया, सब कुछ किया, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, अष्टमेश हो, षष्ठेश हो, 12वें का मालिक हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। आप जब डीप जाओगे तब पता चलेगा कि आप वृश्चिक लग्न में अष्टमेश बुध पहना के भी रिजल्ट ले सकते हो। उसकी नहीं बात करो, मैं जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि सब जब डीपली इसमें एक चीज ध्यान देखना पड़ता है कि मेरे पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं, वो खुद एस्ट्रोलॉजर थे, अहमदाबाद के अंदर ही है, और अष्टमेश बुध मुझे पहले नहीं बताया कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन वो मुझे एक पॉलिसी बेचने आए थे, तब मेरा 500 रुपया चार्ज था। तो मैंने जब कुंडली देखी, फिर उन्होंने बताया मुझे कि मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। मैंने बोला आपका बुध बहुत खराब है और रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी पे मैं बहुत काम करता हूं। मैंने इतना ही बोला कि अष्टमेश जो है वो आपके जीवन में आपके पतिदेव से दूसरा स्थान हुआ, तो आपके पतिदेव के कुटुंब में उनकी छोटी बहन नहीं होगी। ये मैंने डिग्रिकली सब नक्षत्र के अधीन बताया था। उन्होंने बोला यस, लेकिन फिर मुझे उन्होंने बोला कि मैं अष्टमेश क्यों पहनूं, वो तो मुझे तकलीफ देगा, मृत्यु का मालिक है, तकलीफों का मालिक है। लेकिन उनको मैंने एक ही चीज बोला कि आप काम क्या करते हो, तो बोलते मैं LIC का काम करती हूँ, म्यूचुअल फंड का काम करती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब, मैं बोला आप जब कोई भी पॉलिसी लेने जाते हो क्या करते हो? बोलते मुझे अभी पॉलिसी नहीं मिल रही है। वो बोला अष्टम स्थान आपका खराब है। मैंने उनको इतना बोला कि आप मेरी पॉलिसी लेते हो तो क्या करोगे? तो मुझे बताया कि आपके घर में कमाने वाला कौन है? मैं बोला अकेला। आपका सरकारी जॉब नहीं? मैं बोला ज्योतिषी करता हूँ, और कोई बिजनेस कोई नहीं। घर में बच्चे, 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की दोनों लड़की है। मैंने बोला पत्नी हाउसवाइफ है। तो उन्होंने बोला न करे नारायण, गुजराती में बोले कि आपको कुछ हो गया, आप गाड़ी लेके आ। तो मिला गाड़ी का कोई इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है, आपका इंश्योरेंस? में बोला नहीं है। आप गाड़ी लेके आते हो, गाड़ी आपका लोन पे चले? मेरे लोन पे नहीं है, मैंने कैश में लिया है। तो बोलते आपको कभी कुछ रास्ते में हो गया, आप सही ढंग से जा रहे हो, लेकिन आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं बोला वो सही बात है आपकी। तो बोले आप अपना इंश्योरेंस ले लो। मैंने बोला बहन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप 2 दिन के बाद आना। 2 दिन के बाद वो खुद के सर को लेके आए, उनके जो बॉस होते हैं, मैनेजर वगैरह। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मैंने बोला मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं बोला एक काम करो, आप पन्ना पहन लो। ये मेरे पे आजमाया हुआ प्रयोग है। मैं बोला पन्ना क्यों पहनो? बोलते हैं। उन्होंने पन्ना पहना। उसके बाद 2-3 बार कॉल आया। मैं बोला मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन स्वभाव ऐसा हुआ कि 4-5 महीने के बाद उन्होंने वापस मुझे कॉल किया और मुझे मिलने आए। तब मैंने बोला कि मेरा इंश्योरेंस ले लो, और मैंने उनको इंश्योरेंस दिया। आज वो मेडिक्लेम मैंने लिया, अभी मेडिक्लेम बंद करवा दिया मैंने, 3 साल चला है, उसके बाद बंद कर दिया है। अब मैं आपको खुद का ही बताऊंगा। आप जानते हो मेष लग्न में कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? लग्न पंचमेश और भाग्येश ही बोलते हैं, लेकिन यदि भाग्येश आपका अच्छा है तो कभी मत पहनाओ। वो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट देता है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। सूर्य, आप आपके पिताजी का सुख ज्यादा है तो सूर्य क्यों पहनाना है? ये सारी चीजें देखना पड़ता है। मेष लग्न के अंदर प्रबल, मारक और बाधक कौन होता है? बाधक शनि होता है। शनि की दशा में ही आगे आया हूं मैं अभी तक।
उसमें दूसरे और सातवें स्थान का मालिक कौन है? शुक्र। प्रबल मारक हुआ, तो ऐसे बोलते हैं मारक, दूसरा स्थान मारक है, कुटुंब मारक है क्या अपना? पत्नी मारक है, ये बताइए। तो ये लॉजिक है पूरा, सब अपनी अपनी जगह पे बराबर है, लेकिन कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से बताना जरूरी रहता है कि मेष लगने के अंदर भी आप छठे का मालिक बुध भी पहन सकते हो। मैंने खुद पहना है और इसके रिजल्ट बहुत लिए है। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। अब मैं मिलन भाई गौर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मिलन भाई, ये अपना ज्योतिष का विषय बहुत गहन है, जितने डीप जाओगे उतना ही आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब हम मिलन काका के नाम से ज्यादा जाने जाते। मिलन भाई वास्तु एक्सपर्ट है, लाल किताब एक्सपर्ट। चालू रखिए। सभी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मोनिका जी को एक और मौका दिया जाए। मैं आप सबकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर मेरे जितने स्पीकर्स हैं, वक्ता हैं, उनको आ जाने दो। मैं प्रोग्राम जब तक मोनिका जी नहीं बोलेंगी मैं बंद नहीं करूंगी। तत्पुरुषाय विद्महे एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मैं सभी मेरे दोस्त भाई बहनों को तहे दिल से नमन करता हूं और मिरल फाउंडेशन का ये जो प्रोग्राम है अकल साइंस का 24th का, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। मेरा लाल किताब के बारे में जो है मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप सबको कोई फिक्स सब्जेक्ट पे सुनना चाहते हैं तो वो भी बता दें, या तो फिर मैं अपने आप जो भी मेरे मन में आएगा वो मैं बताऊंगा। आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसी की, फिर सभी दुनिया की हो। कर भला हो भला, अंत भले का भला, दर्द का इलाज है, मौत का इलाज नहीं, दुनियावी हिसाब किताब है, दावा है कोई खुदा ही नहीं। अब यहां से आया कि भाई मंगल बद के लिए बोलो। मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, मंगल बद के लिए बोलना है या जो भी बोलना है मैं बोलूंगा, लेकिन हमारे आगे जो बहन ने बताया कि हमारी खिड़कियां 3 बजे खोल दो ताकि प्योर ऑक्सीजन हमारे घर में आए, और 3 बजे का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और ऑक्सीजन लाल किताब में बृहस्पति को बोला गया है। जब तक हमारी जान में बृहस्पति है, यानी जो हम सांस ले रहे हैं और सांस निकाल रहे हैं, तो एक बृहस्पति है। जब तक हमारा बृहस्पति ठीक नहीं होगा तब तक हम सांसों को आने जाने का जो प्रबंध है वो नहीं कर पाएंगे। और हमारा जो कोविड टाइम में जो दिक्कत हुई है वो सांसों की हुई है, जो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी लोगों भगवान के प्यारे हो गए। तो सबसे पहले तो हमें बृहस्पति को कैसे ठीक रखते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि बृहस्पति को कैसे ठीक रखें। हमारी कुंडली के जो 12 भाव हैं उसमें से 6 भाव बृहस्पति का है, यानी दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां, और 2 उनकी राशियां हैं, धनु और मीन। हमारी कुंडली का जो 12 भाव है उसमें से 50% भाव तो बृहस्पति ने लेके रखा है। तो हमें सबसे पहले हमारी कुंडली में बृहस्पति को कैसे ठीक रखें
और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो पहले जानना चाहिए। तो बृहस्पति को ठीक रखने के लिए सबसे पहले हमें हमारे जो पिता है, लाल किताब और पराशरी ये ज्योतिष का थोड़ा सिद्धांत अलग अलग है। सूर्य हम खुद है और हमारे पिता वो बृहस्पति है। तो हमें हमारे पिता का आदर करना चाहिए, जिनसे हमने शिक्षा ली है वो गुरु का आदर करना चाहिए, और हो सके तो पीपल की पूजा करना चाहिए। और जिसकी भी कुंडली में अगर बृहस्पति ठीक होगा तो उनके अपनी बाप दादा की विरासत जरूर मिलेगी और उसकी पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मान लो उसका बृहस्पति बहुत बढ़िया है, चाहे वो कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन लोगों को पढ़ाएगा, ये पक्की बात है। दूसरी हम बात करते हैं, ये हेतल ने बोला मंगल बल। तो लाल किताब में दो चीज है, एक है मंगल नेक और एक है मंगल बद। अब मंगल बद मीन्स के वो नेगेटिव है और मंगल नेक वो पॉजिटिव है। तो हमारी कुंडली में मंगल बद और मंगल नेक कैसे डिफाइन करें? लाल किताब की कुंडली काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलती है। वो मेष लगन से कुंडली का आरंभ होता है और उसमें राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया, ना ही कोई पंचांग लिया, मेघ को खुद लगन मान के 12 पक्के घर मान लिए। काल पुरुष के हिसाब से खाना नंबर 1 और खाना नंबर 8 वो मंगल की राशि आ रही है। तीसरे भाव का मंगल लाल किताब के हिसाब से वो कारक भी है। अगर खाना नंबर 1, 3 और 8वें केतु या बुध आ गए तो मान लो हमारी कुंडली में मंगल का नेगेटिव रोल रहेगा ही रहेगा। रोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव रोल रहने वाला ही है। जब भी मंगल और केतु की युति होगी या मंगल और बुध की युति या दृष्टि संबंध होगा, तभी हमें मंगल का नेगेटिव रिजल्ट मिलना पक्का ही है। अब दान भलाई दुनिया जितनी नेक मंगल खुद लेते हैं, बीज बदी का बदला खूनी, हिस्सल मंगल बद लेते हैं। यानी मंगल नेक है, वो दान के लिए तत्पर रहता है, अपने यार दोस्तों के काम के लिए भी वो तत्पर रहता है। और जो मंगल बद का इंसान है वो हरदम चाकू लिए घूमता है, या तू लड़ने वाला ला या मेरे साथ लड़। यानी कि वो मंगल बद का नाम ही इसे कसाई खाना बोला गया है। अब हम कैसे तय करेंगे कि हमारी कुंडली में मंगल सही है या गलत? तो जिसके भी घर में कोई भी खुशी से पहले या खुशी के बाद टेंस वाला बनता है, तो मान लो उसकी कुंडली में मंगल नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर किसी के घर पे खाना लो लंगर वो चलता रहेगा, तो मान लो उसका मंगल नेक है। आपने गुरुद्वारा में देखा होगा लोह लंगर हमेशा चलता रहता है, और कभी भी आप सरदार जियों को मिलना, वो दिल के बहुत दिलावर होते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। अगर जो मैंने बोला वो सिम्टम्स है, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा इलाज बताता हूं, वो हर कोई कर सकता है। हमें गेहूं के लोट में गुड़ के पानी में रोटी बनानी है, और वो 8 रोटी बनानी है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो कोई मैटर नहीं करती। कैसे बनानी है? उसको लोहे का तवा या चिमटा नहीं लगाना है। मिट्टी के कहलेड़े में उसको बना के
हर मंगलवार के दिन कुत्तों या कौवों को या फकीर को आप दे सकते हैं। ये करने से आपको कम से कम 8 मंगलवार के दिन आपकी समस्या में चेंज जरूर लगेगा। और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाके सिंदूर का चोला लगाएं और गुलकंद वाला मीठा पान भी आप हनुमान जी को अर्पण करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मिलन भाई, बहुत सारी माहिती आपी बघा। अब मैं रमेश भाई शुक्ला जी को आमंत्रित करूंगा।